नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। आप सभी के स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस। मैं हूँ आपके होस्ट जोशी रेड्डी। हम इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं फ्रॉम अनसीडेड टेरिटोरीज ऑफ स्क्वामिश, कैट्सी, सिल्वरटूथ और मॉस्कियम नेशंस। हम फर्स्ट नेशंस पीपल को शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपने लैंड को हमारे साथ में शेयर करते हैं फॉर अस टू लिव, ग्रो एंड लर्न एंड एंजॉय द मदर नेचर। आज हम वो सभी को भी याद करते हैं those who have lost their loved ones and the season of Christmas, which we understand is very painful, and they are not celebrating this festive season. There is a lot of pain in this world today. This is our last show of 2023, and we will be bringing in the brand new year on December 31st, and we will be bringing in the brand new year on December 31st at midnight. I hope for all of us, 2024 will be the best year ever for all of us. New Year's is just around the corner. This is the time to be generous. 1 out of 4 kids go to school hungry. Please give generously to the food bank so that they can feed the hungry. Because of the hefty cost of housing, either you are renting or have a mortgage. There is not enough money left to feed the families. Those people that use the food bank have 1, 2, or sometimes 3 jobs, but still they can't feed their families. Please be kind and donate generously. Let's take a short break and we will be back after a few words from our sponsors. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages. Bollywood Banquet Hall and Conference Center, located at Pile Business Center at 201-8166 128th Street in Surrey. No celebration is too small to accommodate you. They have newly renovated 2 halls to serve you, up to 1,000 guest capacity, top-notch chefs to delight you with delectable and heavenly cuisine. So just call Bollywood Banquet Hall at 604-598-2700 for your events. Thank you sponsors for your support. अब हमारे साथ में आई है विक प्रसाद जी with Fiji News, Local News and Sports. Please take a look. नमस्कार, फिजी इन फोकस में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम वैनकूवर, कनाडा से प्रसारित हो रहा है। फिजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। होम अफेयर्स मिनिस्टर पीओ तिकंदुअंदुआ ने कोलिशन सरकार के खिलाफ किए गए दावे के लिए फॉर्मर अटॉर्नी जनरल अयाज सैयद कयूम की आलोचना की है। फिजी फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी सैयद कयूम ने अपने इस्तीफा पत्र में सैयद कयूम ने सरकार के खिलाफ कई आरोपों को आउटलाइन किया है। होम अफेयर्स मिनिस्टर ने विशेष रूप से सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए कोई सम्मान नहीं होने के दावे को संबोधित किया है। तिकंदुअंदुआ ने सैयद कयूम के दावे को निंदा किया है। तिकंदुअंदुआ का कहना है कि चीज़ें पहले की तुलना में अब बेहतर है। तिकंदुअंदुआ ने पूर्व अटॉर्नी जनरल के दावे को भी जवाब दिया है जो कहते हैं कि कुछ डेवलपमेंट पार्टनर्स पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। होम अफेयर्स मिनिस्टर का कहना है कि दावे निराधार है और फॉर्मर फीजी फर्स्ट सेक्रेटरी को स्पेसिफिक होने को या नाम प्रदान करने की आवश्यकता है। स्मॉल क्लेम्स ट्राइब्यूनल का एक फॉर्मर सीनियर कोर्ट ऑफिसर को बृहस्पतिवार को रिश्वतखोरी के संबंधित आरोप से सुबह मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। एलोवी तेली दौलाती पर फिजी इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन द्वारा रिश्वतखोरी का एक आरोप लगाया गया है। यह आरोप लगाया गया है कि नवंबर 2020 में दौलाती ने सुबह स्मॉल क्लेम्स ट्राइब्यूनल में एक सीनियर कोर्ट ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे और एक पब्लिक सर्वेंट भी रहे। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक सैमसंग गैलेक्सी A12 मोबाइल फ़ोन स्वीकार किया था। रेसिडेंट मजिस्ट्रेट ने $500 की नॉन कैश बेल दे दी है और दौलाती को आदेश दिया है कि वो जमानत पर रहते हुए दोबारा अपराध ना करे। दौलाती को यह भी आदेश दिया गया है कि वो प्रोसिक्यूशन पक्ष के गवाहों के साथ हस्तक्षेप ना करे और अदालत को सूचित किए बिना अपना पता भी ना बदले। दौलाती को 29 सितंबर को एक बार फिर फाइके कार्यालय को रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। मामले को 5 फरवरी 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोटोका शहर में अपनी दुकान के बाहर लूटपाट के एक मामले में 50 वर्षीय महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में लेटी हुई महिला की तस्वीरें भी प्रसारित की जा रही है सोशल मीडिया पर, जिसके सिर पर भारी पट्टी बंधी हुई है और उसके कपड़े और बेडशीट पर खून लगा हुआ है।
पब्लिक हो रही इन भीषण डकैती पर गंभीर चिंता जता रहे हैं और जो किया जा रहा है उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। एक्टिंग पुलिस कमिश्नर जूकी फोंग चिव का कहना है कि लोटोका पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को पकड़ लिया है और पीड़ित को फोन संदिग्ध के कब्जे में भी पाया गया है। चिव का कहना है कि संदिग्ध का पहचान सीसीटीवी फुटेज के द्वारा हुआ था। महिला पर कथित रूप से हमला करने और उसे लूटने के आरोप में वो व्यक्ति हिरासत में है। महिला को स्थिर हालत में भर्ती कराया गया और जांच जारी है। कुछ लोगों ने लोटोका शहर में एक सुपरमार्केट के बाहर खुलेआम शराब पीने वाले युवाओं के संबंध में लोटोका पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर चिंता जताई है। वे पुलिस कार्रवाई चाहते हैं। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि वो इस मुद्दे पर डिविजनल पुलिस कमांडर वेस्ट से बातें करेंगे। डिविजनल पुलिस कमांडर वेस्ट एसएसपी लकोम्बो वैसेवा ने बताया है कि वह इस बात पर तुरंत ध्यान देंगे कि उन्हें यह रिपोर्ट मिली है। सुबह वोफ पर खड़े जहाज़ों में एक पुलिस के सरप्राइज चेक के दौरान marijuana पाए जाने के बाद 4 लोगों पर अभी भी जांच चल रही है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑपरेशंस लीवाई ड्रू का कहना है कि वे आराम नहीं करेंगे और नशीली दवाओं और अन्य अवैध पदार्थों के लिए स्थानों और रोड साइड एरियाज में सरप्राइज चेक्स द्वारा नशीली दवाओं के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उनका कहना है कि उनकी टीम क्रिसमस और नए साल के लिए marijuana की सप्लाई को रोकने में कामयाब रहेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि जिस जहाज को छोड़ दिया गया था उसमें भी कई दवाई पाए गए हैं। आईसीपी ड्रू ने सभी फिजी वासियों को सलाह दी है कि रविवार की घटना इलीगल एक्ट में शामिल सभी लोगों के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पुलिस किसी भी समय अपनी सरप्राइज चेक जारी रख सकती है। नॉर्दर्न डिवीजन की पुलिस वर्तमान में नम्बुआलू में स्कूल क्वार्टर्स में तोड़फोड़ और घुसपैठ के प्रयास का जांच जारी रख रहे हैं। डिविजनल पुलिस कमांडर एसएसपी कम्युले बलेंड्रोका के अनुसार पिछले 2 सप्ताह के भीतर कई घटनाओं के बाद एक टीम रिपोर्ट पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। उनका कहना है कि उन्हें इन घटनाओं में 6 स्टाफ क्वार्टर्स को निशाना बनाए जाने का रिपोर्ट मिला है। ऐसा माना जाता है कि लगभग $3000 मूल्य की असॉर्टेड आइटम्स कथित तौर पर चोरी की गई है। जांच अभी जारी है। आप देख रहे फीजी इन फोकस। अब कुछ स्थानीय समाचार। पुलिस का कहना है कि सरी के न्यूटन में शुक्रवार सुबह एक व्यक्ति को एक कार ने टक्कर मार दी जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। सरी आरसीएमपी का कहना है कि सुबह 2:40 AM माउंटेज ने 138 स्ट्रीट और 72nd A एवेन्यू पर पैदल यात्री के साथ टक्कर की रिपोर्ट पर रिस्पॉन्ड किया। पुलिस का कहना है कि सरी फायर डिपार्टमेंट और BC एम्बुलेंस ने घटना को अटेंड किया लेकिन पेडेस्ट्रियन की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। जांच अपने शुरुआती चरण में है। जांचकर्ता बयान एकत्र कर रहे हैं और डैश कैम के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 138 स्ट्रीट एरिया में डैश कैम फुटेज सहित जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सरी आरसीएमपी से 604-599-0502 पर संपर्क करने के लिए कहा जा रहा है। डेल्टा पुलिस का कहना है कि बृहस्पतिवार शाम को गोलीबारी के बाद एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डेल्टा पुलिस डिपार्टमेंट का मानना है कि गोलीबारी टारगेटेड हो सकता है और इसका संबंध BC गैंग कॉन्फ्लिक्ट से भी हो सकता है। गोलीबारी शाम करीब 5:45 PM हुई और पुलिस का कहना है कि संदिग्ध इलाका छोड़कर बाहर चला गया है। पुलिस का कहना है कि जनता के लिए कोई खतरा नहीं है और फिलहाल कोई और जानकारी हाथ नहीं लगी है। डेल्टा पुलिस डिपार्टमेंट किसी भी जानकारी या डैश कैम या CCTV फुटेज वाले किसी भी व्यक्ति को 604-946-4411 पर कॉल करने के लिए कह रहे हैं। आप देख रहे फीजी इन फोकस विक प्रसाद के संग। अब कुछ खेल कूद की जगत से जानकारी। वैंकूवर कैनक्स के लेजेंडरी गोलटेंडर रोबर्टो लुओंगो को बृहस्पतिवार को फ्रेंचाइज के रिंग ऑफ ऑनर में एडमिट किया गया है। लुओंगो ने वैंकूवर कैनक्स के लिए 2006 से 2014 तक खेला था जिसमें उन्होंने कैप्टन की भूमिका भी निभाई थी। उन्होंने ओलंपिक्स में कनाडा की ओर से भी गोली खेला था जिसमें कनाडा ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। NHL के अंतर्गत जो कुछ खेल हुए हैं वैंकूवर कैनक्स के कुछ इस प्रकार से है। मंगलवार को जो खेल हुआ था वैंकूवर की जीत टेम्पा बे से 4-1 से हुआ। बृहस्पतिवार को कैनक्स ने फ्लोरिडा पैंथर्स को 4-0 से पराजित किया। शनिवार को वैंकूवर की हार मिनेसोटा वाइल्ड से 2-1 से हुआ। रविवार को कैनक्स का भिड़ंत शिकागो ब्लैक हॉक से हुआ जिसमें वैंकूवर कैनक्स की जीत 4-3 से हुआ। पॉइंट्स टेबल की ओर अगर हम देखते हैं तो वेगस गोल्डन नाइट्स 31 गेम्स के बाद 45 पॉइंट्स है। वैंकूवर कैनक्स दूसरे पोजीशन पर है 31 गेम्स के बाद उनके पास 42 पॉइंट्स है। LA किंग्स के पास 26 गेम्स के बाद में 36 पॉइंट्स है और चौथे स्थान पर एडमंटन ऑयलर्स है 27 गेम्स के बाद उनके पास 27 पॉइंट्स है। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।
Thank you. Now we have all of our hosts in Fiji in Focus and our news anchor to talk about the year it was in 2023. This is also the last show of the year for Fiji in Focus for 2023. Please have a look. नमस्कार, बुला, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस और आज जिनसे हम बात भी करेंगे वो हमारे न्यूज़ एंकर है फीजी इन फोकस के, और इसलिए आज हम उससे बात करने भी जाएंगे क्योंकि ये अभी फीजी से घूम कर आए हैं। तो लोग जानना चाहते हैं फीजी कैसा है। अभी आपको पता है कोलिशन गवर्नमेंट वहाँ पर है। व्हाट इज़ द सिचुएशन इन फीजी? सो विक जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वी मिस्ड 2 weeks ऑफ नो न्यूज़, हमारे न्यूज़ था ही नहीं। पीपल कॉल्ड मी, वो कहता विक कहाँ चला गया। मैंने कहा विक इज़ ऑन वेकेशन। जी कमिला जी नमस्कार, और फीजी इन फोकस देखने वाले सभी श्रोताओं को विक प्रसाद का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, मैं गया हुआ था फीजी तो 16 डेज़ के लिए मैं गया हुआ था। पहले तो मैं 10 डेज़ था न्यूजीलैंड में। उधर मेरी माता है, मेरे भाई है, मेरी बहन है, तो उनके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, क्वालिटी टाइम कह सकता हूँ, वो स्पेंड किया 10 डेज़ उधर। फिर मैं आया फीजी देश। फीजी में थोड़ी सी गर्मी थी। क्योंकि दिसंबर टाइम आपको तो पता है गर्मी ज़्यादा होती है, तो इस टाइम पे गर्मी अधिक था, हम कह सकते हैं। कि हम ना फीजी में कहते हैं बड़ा दिन आ गया, बड़ा दिन आ गया, लंबा दिन होता है। तो लेकिन मौसम थोड़ा सा गर्मी होने के बावजूद भी बहुत ही बढ़िया था सारा कुछ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी। अच्छा, आप जब गए फीजी अभी अंडर न्यू कोलिशन गवर्नमेंट के फर्स्ट टाइम है कि आप वहाँ पर गए जी, लोग कैसे वहाँ पर? आर दे पीपल हैप्पी? मुझे सुनने में आया कि काफ़ी लोग फीजी छोड़कर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जा रहे हैं, वो तो यंगर जनरेशन कर ही रहे हैं। आपको कैसे लगा, क्या है वहाँ? कमिला जी, मैं आपको बतलाऊं कि लोगों का जो रिएक्शन है, जो उन्होंने सोचा था, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइड ज़्यादा नहीं उसके बारे में बतलाऊंगा, लेकिन जो लोगों ने सोचा था कि ये सरकार आएगा, उनके हित में काम करेगा, थोड़ा सा उनको निराशा हाथ लगी है। क्योंकि लोग सोच रहे थे कि ये सरकार लोगों के हित में रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें उनको नहीं मिला जो चाहते थे। लेकिन क्राइम रेट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है। इस पर मैं ज़ोर देना चाहूँगा कि जब से ये सरकार आया है, जो हमारे वितिवासी है वहाँ के, वो लोग सोचते हैं कि उनका सरकार है, और लोग बहुत मतलब वितिवासी जो है लोगों के साथ में जो उनका बर्ताव है बहुत गलत हो रहा है, और चोरी चकारी जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। एक वाक़या मैं बतलाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसका बेटा काम कर रहा है एक सुपरमार्केट में, तो वो मैनेजर है वहाँ पर। तो एक दिन की बात है, वो मैनेजर गया काम पे, तो उसका जो वर्कर था वहाँ पर काम कर रहा था, वो वितिवासी था। वो यूनिफॉर्म नहीं पहना था, वो मतलब टी शर्ट और पैंट्स पहन के काम कर रहा था, क्योंकि जब आप काम करते तो यूनिफॉर्म होना चाहिए ना। तो यूनिफॉर्म नहीं पहना, तो वो हमारे जो फ्रेंड का बेटा था, वो मैनेजर ने बोला कि आप क्यों नहीं यूनिफॉर्म पहन कर आए, आपको इतने बजे काम पे आना था, आपने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना, ऐसे क्यों काम कर रहे थे? तो जो एक बंदा वहाँ पर शॉपिंग कर रहा था, वो भी वितिवासी था, मतलब आयतौकी था। तो उन्होंने डट कर खड़ा हो गया उसके सामने कि आप इनसे ऐसे मत बात करो। वो तो उसका वोकर है ना, लेकिन वो बंदा जो शॉपिंग कर रहा था वो बोल रहा है कि आप इससे ऐसे मत बात करो, क्योंकि आप जानते हो ये हमारा सरकार है, हमारा गवर्नमेंट है, हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं, आपके पास कोई अधिकार नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें नहीं पता चल रहा है कि वो क्या बातें कर रहे हैं या क्या हो रहा है, लेकिन अभी जो आदिवासी है वो सोचते हैं कि ये सरकार उनका है, और ये जो कुछ है मनमाना कार्य कर रहे हैं। एक और वाक़या आया है, अभी मैं आपको बतला दूं कि लोटोका मार्केट के पास जो सुपरमार्केट है उसके बगल में लोग बैठकर शराब पी रहे अपने आदिवासी जो है वहाँ पर। तो पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। लोगों ने उस पर जब प्रतिक्रिया डाला तो उन्होंने पिटीशन लिखा, पुलिस को कॉल किया, सभी ने जाकर बतलाया, तब पुलिस कह रहे हैं कि हाँ हम इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे। तो मतलब यही है कि कुछ ऐसे रिपोर्ट आ रहे आगे, और कुछ ऐसे रिपोर्ट्स है जो नहीं हो रहे हैं। कई ऐसे रिपोर्ट्स गांव-गांव में जो वहाँ पर उनसे छेड़छाड़ किया जाता है, वो रिपोर्ट्स नहीं हो रहे हैं, तो ये हमें नहीं पता चलता है। लेकिन बट ओवरऑल मैं बता दूं कि लोग जो है सोचते हैं कि शायद अब वो समय नहीं रहा जैसे कि पिछले गवर्नमेंट में था कि कुछ भी प्रॉब्लम हो आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं, या जो प्राइम मिनिस्टर था उनका एक डायरेक्ट लाइन था,
अगर आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है, आप डायरेक्ट लाइन पे कॉल कर सकते हैं। मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो अभी हो रहा है उसके बारे में मैं आपको बतला रहा हूँ, वो सही नहीं हो रहा है। और अच्छा, गरीबी कैसे है? और अगर मार्केट वगैरह में आप गए तो इतना महंगा, सभी सामान तो उसी तरह का महंगा है। जी हाँ। और $4 इनका मिनिमम वेजेस है, जी। and it just got raised now। जी, अगर आप देखिए, अभी एक तूफान आकर गया है, वो तो थोड़ा सा बच गया, नहीं तो फिजी देश के ऊपर से जाता, लेकिन तूफान हवा या पानी के रास्ते चला गया। लेकिन फिर भी अगर महंगाई की ओर हम देखते हैं तो कंपेयर करते अगर उनके जो आमदनी है उससे 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा है, तो महंगाई जो वहाँ पर लोग रह रहे उनके लिए बहुत अधिक है। लेकिन जो टूरिस्ट जाते हैं, अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें प्राइस, अगर मैं आपको बतलाता हूँ यहाँ पर कि आप सपोज एक टिन मटन लेते हैं, यहाँ पर तो आपको मिलेगा $10 में या $8 में मिलेगा। तो अगर आप फिजी में लेते हैं तो अगर हम यहाँ से पैसे लेकर जाते तो आपको 5.5 या 570 में मिल जाता है। तो और दूध वहाँ पर जो रेवा पाउडर्ड मिल्क है 375 में मिल रहा है। तो हमारे लिए वो चीपर लग रहा है, राइट। तो हम अपने बड़े पैसे लेकर खरीद सकते हैं। लेकिन जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए महंगाई ज़्यादा, क्योंकि उनकी आमदनी इतना ज़्यादा नहीं है, तो वो कठिनाई का महसूस कर। लेकिन आपको बतलाऊं कमिला जी, एक अच्छी बात मुझे लगा, मैंने जितने लोगों के घर पर गया, हालांकि मुझे कई लोगों ने आमंत्रित किया था, मुझे सभी लोगों ने आमंत्रित किया कि हमारे घर पर आना, तो मैंने जहाँ जहाँ गया लोगों ने इतने अच्छे तरह से, इतने भव्य तरीके से स्वागत किया मेरा। भोजन पानी इत्यादि जो कुछ भी था उनके पास, बहुत ड्रिंक्स बहुत अच्छे से दिया उन्होंने। लोग मतलब हाँ महंगाई है, लेकिन लोग उसी समय पर लोग अपना लाइफ भी इंजॉय कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मौसम मिल रहा है उनको ना, अच्छा मौसम मिल रहा है खाने पीने के। अब कई लोगों ने क्या किया है, घर पर वेजिटेबल्स बोना शुरू कर दिया है, क्योंकि कोविड ने बहुत कुछ लोगों को सिखा दिया है। कई लोगों को मैं जानता हूँ वो घर पर ये जो अपना फसल उगा रहे हैं। तो ये हाँ, जो महंगाई है वो शराब को लेकर बहुत महंगाई है, फिजी गोल्ड बहुत महंगा है। तो मैं ने देखा कि लोग लेकिन वहाँ पर एंजॉय करते हैं। माय लास्ट क्वेश्चन इज, जब यहाँ से प्लेन जाता है फिजी एयरवेज, पूरा पैक्ड प्लेन जाती है, बट यू नो आई थिंक फिजी इज सर्वाइविंग ऑन टूरिज्म। यही लोग जाकर पैसा वहाँ होटल्स में खाने पीने का, टैक्सी का, और यही है वहाँ का इकोनॉमी रन करते। लेकिन वहाँ पर वैसे देखा जाए तो बहुत इंटरेस्ट नहीं है काम करने के लिए, unless you have a good office job। जी कमिला जी, मैं आपको बतला दूं, पहले तो आपने कहा कि टूरिज्म अभी बैकबोन है फिजी का। हाँ। क्योंकि अभी आप देख लो, मैंने कुछ वीडियोस भी शेयर किया था, उसमें जो सैंडी बीचेस है वहाँ पर बहुत सुंदर लग रहा है। तो टूरिस्ट यूएसए से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से भर घर जाते हैं फिजी में एंजॉय करने के लिए। तो ये पहला कारण है। इसलिए होटल्स जो है अभी सभी होटल सोल्ड आउट जा रहे हैं, स्पेशली ये क्रिसमस सीजन में। अभी जब बच्चों के छुट्टी हो जाएंगे, अभी सभी होटल्स सोल्ड आउट है फिजी में, क्योंकि मौसम मिल रहा है ना बढ़िया, तो लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। हाँ, ये होटल्स का टूरिज्म का है। लेकिन अभी जब थोड़ा सा चोरी चकारी होने लगा है तो लोग सतर्क हो गए, टूरिस्ट भी थोड़ा सतर्क हो गए हैं। तो दूसरा आमदनी फिजी में जो आ रहा है वो रेमिटेंस है। क्योंकि आप देख लो, जब अभी आपने कहा कि लोग फिजी छोड़कर जा रहे बाहर, जो फिजी लोग छोड़कर गए हैं, हमने भी फिजी छोड़कर आए हैं 2002 में, और कई लोग के कू के समय आ गए थे। तो जब लोग बाहर आ जाते तो उनके परिवार तो वहाँ पर है। तो यहाँ से पैसे जो भेजते हैं फिजी में, ऑलमोस्ट मैं एग्जैक्टली नहीं बतलाऊंगा, बट मिलियंस में जो रेमिटेंस है वो जा रहा है फिजी में। तो ये एक अच्छा रेवेन्यू है फिजी के लिए। लोग यहाँ से रेमिटेंस भेजते हैं और जा रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं पैसे, इकोनॉमी में पैसे आ रहे हैं। और एक और बात है, अच्छी बात ये है कि सरकार के द्वारा जो लोग फसल उगा रहे हैं या जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनको भी सरकार की ओर से योगदान दिया जा रहा है कि आप फसल उगाओ, क्योंकि ओवरसीज मार्केट में बहुत उसका जो डिमांड है। आप देख लो, कटहल जो है, कटहल ओवरसीज जा रहे हैं, दुरुका आ रहे हैं, जो नकाई काई हम कहते हैं वो ओवरसीज जा रहे हैं। तो सरकार लोगों को उत्साहित कर रही है कि ऐसे में कार्य में आप पैसे लगाओ ताकि आप उसको उगाकर विदेश भेज सको। तो पीसफुल और गुड लिविंग काइंड ऑफ। अगर देखो, मैं बतला रहा हूँ, अभी फिजी में अपॉर्चुनिटी बहुत है। लोग जो उगा रहे, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। करेला मैंने देखा, इतना बड़ा बड़ा करेला हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। दरुका लोग बना निकाल कर देते, कटहल बना कर निकालते हैं ओवरसीज। बहुत कुछ ऐसे हो रहा है जो लोग विदेश भेज रहे हैं।
Thank you so much. We could be sitting and talking here for hours, but thank you for your time. थैंक यू कमीला। और जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं कहूँगा कि आप जाइए, फिजी देश घूम कर आइए। जितने भी लोग अभी तक नहीं गए हैं, क्योंकि बहुत सुनहरा है। हाँ, रात्रि को अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहें। दिन में घूमिए, रात को परिवार के घर पर या होटल में रहिए, क्योंकि रात्रि को घूमना फिजी में अभी के लिए थोड़ा सा डरावना है, मैं कहूँगा। धन्यवाद कमीला जी समय देने के लिए, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास कुछ पब्लिक अनाउंसमेंट्स है, लीजिए देखिए, एंड प्लीज हैव योर पेन एंड पेपर रेडी टू मेक नोट्स। For all you rugby lovers, Rugby Sevens will be here in Vancouver from February 23rd, 24th, and 25th. You can now go on their website to purchase 1 day, 2 days, or all 3 days tickets. Tickets are on sale now. Angel Music Productions present live band concert and DJ on New Year's Eve on December the 31st at 6:30 p.m. at Bombay Banquet Hall in Surrey. For tickets and more information, please call Mike Singh at 604-818-9405 or Vish Chaturvedi at 236-999-0666. Nilesh Prasad at 403-919-9670. New Year's Eve party on the deck is taking place on December the 31st, 2023. Time is at 7 p.m. Single tickets is $100 per person, or a table of 8 is $750. Children 5 to 10 years are only $75. For tickets and more information, please call Abhinesh at 604-771-7457 or Agnes at 604-771-7499. New Year's Eve on December 31st from 5 p.m. until 12 a.m. at 10576 King George Boulevard. For sponsorship and more information, please call 604-710-0665. A la carte food and music all night. Bollywood Dhamaka New Year's Eve 2024 dinner, dance, and much more at Empire Banquet Hall in Surrey at 12880 80th Avenue in Surrey. Tickets are only $50 per person. Please call Prem Patel at 604-618-7119 or Sunny Randawa at 778-552-6565. Happy 25th wedding anniversary to Vic and Sarita Prasad. Vic is our new anchor. Best wishes are from his 3 beautiful children, family and friends, and on behalf of our Fijian Focus team, we all wish them another 100 years of togetherness, happiness, and good health. We will now show you Fiji Bhajan by Menam Kumar. Hope you will all enjoy it.
हमारे पास इतना ही समय था। अब हम आप सभी से विदाई लेने चाहते हैं। आपके बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं कि आपने हमारे शो को एंजॉय किया होगा और ऐसे ही आप हमारे फिजियन फोकस से जुड़ते रहेंगे। इस शो को आप फिर से देख सकते हैं every Thursdays at 2:30 p.m. and on Sundays at 4 p.m. Vancouver time on Channel 4 and in Calgary at 5 p.m. on Channel 10. आप लोग YouTube चैनल पर भी फीजी फोकस को देख सकते हैं। Please press the like button and do not forget to share and subscribe for the channel. Fiji in Focus brings 3 other shows आपके लिए. Asian Pulse TV on every Wednesdays at 1:30 p.m., Thursdays at 8:30 p.m., and Saturdays at 5:30 p.m. The Camilla Singh Talk Show on every Mondays at 10 a.m. and Sundays at 5:30 p.m. Bula Beats TV on Thursdays at 10 p.m. and Sundays at 4:30 p.m. Please watch all of our shows. अब हमारी मुलाकात होगी next week on Tuesday at 10 p.m. only on Shaw. हम आप सभी को शुक्रिया अदा करते हैं for spending your valuable time with us. Please watch all of our shows and like and share on YouTube. I'm your host, Joshi Reddy. I end here with this quote for all of you. The smile on my face doesn't mean my life is perfect. It means I appreciate what I have and what I'm blessed with. Author unknown. Dhanyavad and Vinaka.